ٹھیک ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ جلال الدین ماؤس کی بات سن کر اونچی آواز میں بولے۔ وہاں موجود تمام افراد خاموش ہو گئے اور ان کی بات سننے کے منتظر تھے۔ ہم اپنی پوتی کو اس رسم کے خلاف ورزی میں دیں گے، مگر اس کا نکاح یہاں چوپال میں نہیں، حویلی میں پوری عزت و امان کے ساتھ ہوگا۔ اس کی بات سن کر ماؤس تلملا کر رہ گیا، مگر موقع کی مناسبت سے اس نے فی الحال خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ جی ٹھیک ہے، اس میں کیا اعتراض بھلا؟ نکاح ہی ہونا ہے، وہ یہاں ہو یا حویلی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ سرپنچوں میں سے ایک بزرگ و معتبر شخص نے کہا۔ وہ سب ایک ساتھ حویلی کی بیٹھک میں پہنچ گئے تھے، صرف ماؤس جعفری ہی نکاح خواہ کے ساتھ اندر آیا۔ سردار واجد، سردار حماد، جلال الدین، فیروز، سائم اور شہرام، سب حویلی کے مرد حضرات وہاں موجود تھے۔ حویلی میں ہلچل دیکھ اذلان اور فجر بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئے۔ سامنے اپنے بھائی کو دیکھ فجر بلا اختیار بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ماؤس، بابا سائیں۔ ماؤس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ وہاں کا ماحول دیکھ فجر اذلان کے ساتھ صوفے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی سہا، اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ کیوں میری زندگی کو، میرے خوابوں کو نوچ لیا گیا؟ دعا کی سسکاریاں اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن سہا اس کی درد بھری آہیں سن کر منہ پھیر کر بے آواز رونے لگی۔ کیوں سہا، کیوں؟ وہ کیسے میرے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کر سکتے ہیں جسے میں جانتی تک نہیں؟ کیا ساری زندگی اتنی آسانی سے ایک انچاہے دیکھے شخص کے ساتھ گزاری جاتی ہے؟ کیسے یقین کر لیا سب نے کہ وہ ایک سلجھا ہوا انسان ہے؟ کیا ساری زندگی وہ ایک بنی میں آئی ہوئی لڑکی سے نرمی اور شفقت سے پیش آئے گا؟ آخر مجھے ہی کیوں اپنی دشمنی کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے؟ وہ باقاعدہ اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ سوہا، تم تو سب جانتی ہو نا، میرا دل درد سے پھٹ جائے گا، میں کیسے اسے اپنی زندگی میں جگہ دوں گی؟ دعا کی یوں روتے ہوئے بات کرنے پر سوہا کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم بھی کچھ نہیں کر سکتی نہ میرے لیے، جیسے باقی سب خاموشی سے میری قربانی دے رہے ہیں ویسے ہی تم بھی چپ رہو۔ دعا یہی مر گئی اس حویلی میں، یہاں سے صرف اس کا وجود جائے گا۔ قتل کر دیا تم سب نے مل کر آج میرے احساسات کا، مر گئے تم سب آج میرے لیے۔ سہا کو اس کی باتوں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ دعا، یہاں صرف مردوں کا ہی قانون ہوتا ہے، بے زر سی عورتیں نہ کبھی پہلے اپنے حق میں آواز اٹھا پائی ہیں اور شاید نہ کبھی آگے اٹھا پائیں گی۔ یہاں ماں باپ خود اپنی جان سے عزیز بیٹیوں کو کبھی مجبوری تو کبھی ونی جیسی رسم کے نام پر درندوں کے سونپتے آئے ہیں اور شاید آگے بھی سونپتے رہیں گے۔ سہا، انجانے وہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ دعا کی روتے ہوئے ہچکی بند گئی تھی۔ دعا، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سہا نے دعا کو گلے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے دعا کے سر پر سیاہ بڑی شال اوڑھ دی اور اسے اپنے ساتھ لیے باہر نکل آئی۔ سہا اور صبرینا بیگم دعا کو اپنے ساتھ لے کر آئیں اور اسے ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کے سر پر شال تھی جو گردن تک تھی، جس سے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ماؤس نے ایک بار بھی اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ گڑیا، اذلان نے فجر کا شانہ ہلا کر کہا۔ جی اذلان جی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں شادی ہو رہی ہے، جیسے ہماری ہوئی تھی۔ فجر نے اسے آہستہ آواز میں تفصیل بتائی۔ شادی؟ ہاں مزہ آئے گا گڑیا، ہم بھی آج اپنے گڈے اور گڑیے کی پھر سے شادی کریں گے۔ ہاں کتنا مزہ آئے گا، اذلان اونچی آواز میں کہتے ہوئے زور زور سے تالیاں بجانے لگا۔ ماؤس نے حیرانگی سے اپنے بہنوئی کو دیکھا جو بظاہر تو خاصا خوبصورت تھا، مگر تب تک قابل قبول تھا جب تک وہ چپ تھا۔ اس کی باتوں اور انداز ماؤس کو بہت کچھ سمجھا گیا۔ ماؤس نے ایک جانتی ہوئی نظر سامنے کھڑی ہوئی اپنی بہن فجر پہ ڈالی۔ وہ خود کو اور بھی پستی میں گرتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اسی کی وجہ سے آج اس کی بہن ایک ذہنی مریض کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا اس وقت سامنے موجود ہر چیز کو آگ لگا دے۔ اسے اپنی ضبط کی تنبیہیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر وہ مٹھیاں بھیج کر خود کو سنبھال رہا تھا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ نکاح خواہ کی طرف متوجہ ہوا جو اس شال میں مبلس بلکتے اور ہٹکورے لیتے ہوئے وجود سے اس نکاح کے لیے قرار لے چکا تھا۔ اب ماؤس کی باری تھی۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا ہوا تھا اور رگیں پھولی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ دونوں طرف سے
इजाब व कबूल का सिलसिला ख़त्म हुआ तो मौज बिना कुछ कहे, बिना अपनी मनहुआ को साथ लिए, एक चुटकी हुई नज़र फजर पे डालकर लंबे लंबे ढाक भरता हुआ बाहर निकल गया। शहराम ने इसकी हरकत पर दांत पीसते हुए उसके पीछे जाना चाहा ताकि इस हरकत पर उसे मज़ा चखा सके, मगर जलालुद्दीन ने उसका हाथ पकड़कर उससे ऐसा कुछ भी करने से रोक दिया। उन्होंने सोहा और सबरीन को इशारा दिया, वो दोनों उसे अपने साथ लिए बाहर आईं। माउज़ अपनी जीप में फ्रंट सीट पर बैठ चुका था। सबरीना ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर दुआ को इसके अंदर बिठाया। इससे पहले कि वो उसे अलविदा दुआ देती, माउज़ के इशारा करने पर ड्राइवर ने जीप दौड़ा दी। वो दोनों दुआ और माउज़ की धूल उड़ाती हुई जीप को देखने लगी। अम्मा साईं, मैंने कई बार माँ को इस बोर्ड के दरख्त के पास खड़े अकेले किसी से बातें करते देखा है, कहीं उस पर कोई जिन तो आशिक नहीं हो गया। हुस्ना ने शबाना को आकर राजदाना अंदाज में बताया। ये भी तूने खूब कही हुस्ना, भला जिन को भी आशिक होने के लिए एक वही मिली थी, काली कलोटी डायन। शाहाना ने तस्रीर अंदाज से हंस कर कहा, तुम दोनों चुप कर जाओ, इतने सालों से वो बोर्ड का दरख्त है, पहले तो कभी कुछ नहीं हुआ, अब क्या होना है, तेरा वहम होगा। शबाना ने माथे पर शिकन नमूदार किए इन्हें झपटा। अम्मा, अगर ऐसा सच में हुआ तो क्या होगा? शाहाना ने डरते हुए पूछा। चल, आज तुम दोनों को कुछ बातें बताती हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे, तुम भी इन्हें पल्लू से बांध लो। शबाना ने सफियाना अंदाज में बात का आगाज़ किया। जितने हम इंसान हैं ना इस दुनिया में, इससे कहीं ज़्यादा जन्नत है, मगर वो हमारी आंखों के सामने दिखाई नहीं देते। कहते हैं इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि इनके बीच सुई भी फेंको तो ना मिले। और बताती हूँ तुम्हें, जब कपड़े तब्दील करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो, ताकि जिन आपको भरमा हालत में ना देखे। दूसरी बात, जब बिस्तर में जाओ तो हमेशा दाएं तरफ पहलू बदल कर सो जाओ, और अल-मुअ्तज़ान कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सो जाओ, क्योंकि जिन सिर्फ आपको तंग करने के लिए आपके ऊपर सो सकते हैं। ऐसी सूरत में आपका दम घुटेगा या आपको डरावने ख्वाब आएंगे। ऐसी पतलियों और गुड़ियों में सुई या नाखून चुभोने की कोशिश मत करें, जिनके लिए जिन वहाँ रहते हैं। ऐसा करने से जिन्नात को तकलीफ़ पहुँचेगी और वो आपसे इंतकाम लेंगे। वो कुछ देर सांस लेने के लिए रुकी और सुनो, वो कुछ देर तौफीक के बाद फिर से बोली, रात के दरमियानी पहर में बुलंद आवाज़ में बात मत करो, क्योंकि इस तरह आप जन्नात को परेशान करेंगे, जिस पर वो आपको जानबूझकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी अकेले बैठकर मत रोना, क्योंकि इस तरह आपका जिन भी दुखी हो जाता है और वो आपको गले लगाने का इंतज़ार करता है, जिससे आपके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। और एक और बात, कोई चीज़ फेंकनी या खुद बुलंद जगह से नीचे छलांग लगाते हुए अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है इस जगह पर जिन सो रहा हो और आप उसे अनजाने में परेशान कर बैठो और वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। नहाने वाले कमरे में दाखिल होने से पहले ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बि मिन अल-खबस वल खबास, लाजमी पढ़ा करो, क्योंकि ऐसी जगह जिन्नात के ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। अम्मा साईं, हमें कैसे पता चलेगा कि जिन हमारे आसपास है? हुस्ना ने मन में आया सवाल पूछा। अगर तुम्हारे कानों में बगैर किसी वजह की सीटियां बजने लगे या खुद को बीमार महसूस करने लगो और तुम्हें आग की बू आ रही हो, तो आप जान लो कि तुम्हारे सामने कोई जिन खड़ा है। अगर तुम किसी जानवर को देखो और इससे तुम्हें खौफ आए या फिर तुम उसे डराने की कोशिश करो लेकिन वो कोई हरकत ना करे, तो समझ लो कि वो जिन है। आईने के सामने बर्मा हालत में कभी खड़े मत होना और ऐसी हालत में कभी खुद को आईने में ना देखना, क्योंकि इस तरह जिन तुम पर आशिक हो सकते हैं और तुम्हारे साथ तलक की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी सूरत में और कोई भी आपके पास आएगा तो वो उसे नुकसान पहुंचाएगा। हाय अम्मा साईं, अब तो मुझे सचमुच खौफ आने लगा है। ये तो वो बातें हैं जो मैं तो नहीं जानती थी। शाहाना ने खौफजदा नज़रों से इन्हें देखते हुए कहा और शबाना के बिस्तर में ही दुबक कर लेट गई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, सारे कमरे में धुआं भरा था और धुएं की वजह गिलास वॉल के सामने खड़ा था। स्याह शलवार कमीज में मुबलिस शानों पर स्याह शॉल डाले में अपने आम हुलिये में वो माहौल पर छाया हुआ था। लबों में दबा सिगरेट, गहरी भूरी आंखों में सोच की परछाइयाँ, परेशानी पर बिखरे बाल। वो खिड़की के पट पर अपना एक हाथ अटकाए किसी गहरी सोच में गुम था। आंखों में मौजूद डोरे इश्तियाल के गवाह थे।
होंठों में दबी सिगरेट से उसने एक गहरा कश लिया और धुआं का मरगोला बनाते हुए हवा के सुपुर्द किया। उसकी स्याह आंखें इस वक्त हद दर्जा सुर्खी माइल हो रही थी। उसका चेहरा इसके अंदरूनी खलफशार की गमाजी कर रहा था। शहराब नाम की पुकार कहीं करीब से आई थी, साथ ही किसी के खांसने की आवाज़ पर वो सिगरेट फर्श पर फेंक कर अपनी खिड़की से एड़ी से मसलता पलटा, जहां दिलनशीन सामने खड़ी हुई अपने दोनों हाथों से धुआं झटक कर बुरी तरह खांस रही थी। वो लम्हों में फासला तय करते हुए इसके पास आया। तुमने ये सब कब से और क्यों शुरू किया? वो तशवीश और गुस्से भरे अंदाज में बोली। तुमसे मतलब तुम्हें कोई काम था क्या? वो इसका सवाल नज़रअंदाज करके संजीदगी से बोला। क्यों बना काम के नहीं आ सकती अपने कमरे में? दिलनशीन ने तहरीर भरी नज़रों से उसे देखा कि आज से पहले वो यूं मुखातिब ना हुआ था। हमेशा इसके आगे पीछे मंडलाता हुआ ही नज़र आया था वो, और आज इसकी लहजे में बेगानगी दिलनशीन को बुरी तरह खिली। तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, जो शायद अपने होश हवास में इस कमरे को अपना कह रही हो। उस सिगरेट को दोबारा हाथ मत लगाना। उसने शहराम की उंगलियों में दबी हुई सिगरेट छीननी चाहिए। मेरे होंठों पे किसी लम्स की ख्वाहिश है शदीद, कुछ ऐसा कर मुझे सिगरेट को जलाना ना पड़े। वो जुमैनी नज़रों से उसे देखते हुए खुमारज़द आवाज़ में बोला। सो जाओ जाकर, लगता है तुम्हारे भी दिमाग पर असर हो गया है। नींद पूरी करोगे तो होश में आ जाओगे। शहराम ने इसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर वो इसका हाथ हटाती मुंह बसोड़े रुख मोड़ गई। क्या हुआ? उसने छिपने से पूछा। आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, मैं आपकी कर दूंगा। तो क्या हुक्म है मेरे लिए? वो दरमियान में मौजूद 2 कदमों का फासला एक ही जुस्त में तय करते इसके करीब होता, आंखों में झांकता मैनी खेजी से पूछने लगा। इस परिवश ने पलकों की झालर उठाते मुकाबले की निगाहों से निगाहें मिलाई, जिसका हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ रहा था। खौफ से कंपकंपाते होंठ, सांसों की तेजी से लहसती झिलमिल करती नथली, ये दिलकश मनाज़िर शहराम के वजूद में बेचैनियां भर गया। इसी बेचैनी में जलता सिगरेट मुट्ठी में दबोच लिया, पर हाथ में होती जलन से बेपरवाह था कि ये जलन इस जलन के सामने कुछ न थी जो इसके सीने में लगी थी। दुआ की वजह से डिप्रेशन में मुतलबा था, बस इसीलिए इसने अपने नते अपने अमल की वजाहत देने की कोशिश की। लेकिन अगर दिल सरकार कहे ये सिगरेट, तो क्या ये दुनिया छोड़ दें, बशर्तिया आपका साथ यकीनी हो। वो मध्यम आवाज़ में बोला, मगर लहजे में बला की जुनून खेजियाँ थीं। इससे पहले कि वो पलट कर दूर हो जाती, शहराम ने जल्दी से इसका हाथ थाम लिया और ना जाने कैसे दिलनशीन का हाथ उठा और खींच के थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा। तुम एक आवारा और घटिया इंसान हो, मैं तुम्हारा दिल बहलाने का सामान कतई नहीं बनूंगी, वो चिल्लाई। जबकि शहराम तो आपे से बाहर होता, इसकी नाजुक पंखड़ियों जैसे लबों पर अपने हाथ की सख्त गिरफ्त रख गया कि वो पीछे दीवार से जा लगी और खौफजदा हिन्नी की मांद इसको हिरासा नजरों से देखने लगी। इतना गुस्सा दिले सरकार, आप पर इतना गुस्सा करना कुछ जचता नहीं। आपको मेरे गुस्से का भी खूब अंदाज़ा है। एक बार बर्दाश्त किया, क्योंकि तब शायद गलती मेरी थी, मैं नामहरम था आपके लिए, तब आपका गुस्सा जायज़ था, मैं खामोश रहा। मगर इस बार कुछ ज़्यादा हो गया दिल सरकार। वो इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ गया। वो सर्द लहजे में इसके कान के करीब फंकारा। दिलनशीन इसकी सख्त गिरफ्त से झंझनाने छटपटाने लगी, क्योंकि उसे अब सर में दर्द होना लगा था। इस बार इस थप्पड़ का खमियाजा भुगतना पड़ेगा दिले सरकार। वो इस पर छाने लगा, जबकि दिलनशीन को अपनी कमर के गिर्द इसकी सरसराती उंगलियां महसूस हुई। वो तड़प उठी, आंखों के किनारे भीगने लगे। शहराम इसकी बेबसी महसूस हुआ। अरे आप तो अभी डर गई, लगता था जिस जुर्रत से थप्पड़ मारा, इसी जुर्रत से बाकी की लड़ाई भी लड़ेंगी, मगर आप तो पहले मरने पर ही हार गई। किस हाल में रखेंगी रफ़ाकतें तेरी, हो गई हैं मुझको अब आते तेरी, मंजिल देगी या दर बदर रखेंगी, मैं किस तरह भला पाऊंगा मोहब्बतें तेरी। हर सू फैले हैं खुशबुओं के झोंके, एक खुमार सा दे रही है चाहतें तेरी। मेरा दिल, मेरी आंखें ऐ जाने
जहाँ अब हो गई हैं मानते तेरी, मत तोड़ना ये सिलसिला मोहब्बतों का दिल सरकार, सह ना पाऊंगा मैं अज़ीज़ें तेरी। अब वो इसके बालों को छेड़ने लगा, दिल नशी सटपटा कर नजरें चुरा गई, मगर शहराम की गिरफ्त बहुत सख्त थी, ना छूने वाली। इसकी आंखों में बेबसी देख शहराम आहिस्तगी से हंस दिया। दिल सरकार प्यार से माफ़ी मांग ले, ये ना चीज़ दिल का इतना बुरा भी नहीं, झट माफ़ कर देगा। वो इसकी कमर में हाथ डाले कर उसे खुद के बेहद करीब कर गया। दिलनशीन के तन बदन में बरकी रवां दौड़ गई, छोड़ो मुझे। वो इसके सीने पर हाथ रखकर उसे धकेलने लगी। ना दिल सरकार, इतना चिल्लाना आपकी ना तो सेहत पर गिरां गुजरेगा। मुझे अब अंदाज़ा हुआ है कि तुम एक तन्हाई, खुदसर और मगरूर इंसान हो। वो इससे अलग होने की तकदो में थी। उसने हंकार भरा। हाँ, मगरूर हूँ, मगर तुम्हारी मोहब्बत में। माफ़ी मांगे दिल सरकार। इस बार इसके जलते हुए गाल को अभी भी करार नहीं मिला था। वो दिलनशीन की आंखों में आंखें डालकर गड़गड़ाया। मर कर भी नहीं मांगूंगी तुमसे माफ़ी, क्योंकि तुम इसी थप्पड़ के लायक हो। वो भी अकड़ कर बोली। ठीक है, तो फिर आज आप अपने कहे की खुद जिम्मेदार हैं। आपको मरना है ना? वो संगीन लहजे में बोला। दिलनशीन की जान हवा होने लगी इसकी बात सुनकर। आज फिर मेरे हर अमल पर आप हर बार मरेंगी। वो उसे बिस्तर पर धक्का देकर सद मेहरी से बोला। सॉरी शहराम, शाहू मुझे जाने दो। उसकी तेवर देख दिलनशीन को हार माननी ही पड़ी। दिल सरकार, वो क्या है? सुबह से कान में ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जरा ऊंची बोले ना, कुछ कहा क्या आपने? दिलनशीन दांत पीस कर फिर से बोली। मैंने कहा सॉरी। चले जाएं, क्या याद करेंगी? आपके आशिक ने आपको माफ़ किया। दिल सरकार, जाकर मेरे लिए अपने इन नाजुक हाथों से चाय बना कर लाएं। वो कहते हुए बिस्तर पर दराज हुआ तो दिलनशीन लबे खलसी हर गहरे सांस लेती हुए भागने के अंदाज में कमरे से बाहर निकल गई। ठक ठक ठक, बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई तो शबाना खुद उठकर दरवाज़ा खोलने गई। जी आप कौन? जी ये साबिर हुसैन का घर है। बाहर खड़े हुए वहजिया नौजवान ने मौजूदाना अंदाज में कहा। जी हाँ, ये इन्हीं का घर है। क्या काम है आपको उनसे? दरअसल मैं उनके दोस्त का बेटा हूँ। शबाना ने उसे सर तक पैर देखा। वो 6 फुट का खूबसूरत जवान था। उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहन रखी थी। बाल घने और स्याह थे, नाक तीखी, आंखें बड़ी बड़ी सुरमई रंग की और शफाफ, चेहरे का रंग साफ और मासूमियत ऐसी बला की कि शबाना को उसे घर के अंदर लाते हुए एक बार भी नहीं सोचना पड़ा। दोनों अंदर आए तो शबाना ने सुहाना को चाय बनाने के लिए कहा। आप चाय का तकल्लुफ़ ना करें, इस नौजवान ने हिचकिचाते हुए कहा। दरअसल मुकाबिल मौजूद जवान ने बात का आगाज़ किया। मेरा नाम शमास बिन्त जमाद है। मैं इसी शहर के करीबी गांव का रहने वाला हूँ। किसी काम के सिलसिले में इस शहर में रहने आया हूँ, पर रिहाइश नहीं मिल रही। इसी सिलसिले में मैं आपके पास आया हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, इस मामले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ भला? सुहाना ने चाय इस नौजवान के आगे रखते हुए उससे नजर भर कर देखा। इसकी आंखों में इस वजह नौजवान के लिए पसंदीदगी की चमक उभरी। मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर का एक कमरा मुझे किराए पर दें। लो भाई, हमारे पास तो खुद 2 कमरे हैं, एक तुम्हें दे देंगे तो खुद कहाँ जाएंगे? बस छत पर एक उधारा सा बनाया है, इसमें कुछ लकड़ियाँ वगैरह रखी हैं, मगर मैं ज़रूरतमंद हूँ इसलिए आपके पास आया हूँ। मैं आपको 10,000 रुपये महाना दूंगा। सिर्फ 1 माह की बात है, जो ही मेरा काम होगा मैं चला जाऊंगा। शमास ने इल्तिजा भरे लहजे में कहा। इसकी किराए की बात सुनकर शबाना फौरन वापस अपनी जगह पर बैठ गई और तहम्मुल से बोली। देखो बेटा, अगर मैं तुम्हारी मजबूरी समझ भी लूँ तो मैं अपनी मजबूरी का क्या करूँगी? आंटी, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। आप मुझसे खुलकर बात कर लें। शमास के लहजे की अपनाहियत ने शबाना को मजबूर कर दिया कि वो इससे अपने मन में छुपी बात कह सके। बेटा, घर में जवान बच्चियां हैं और फिर साबिर हुसैन से भी नहीं पूछा। ऐसे कैसे हाँ कर दूं तुम्हें? चलें, जैसे आपको मुनासिब लगे। मैं कल फिर आऊँगा। आपका जो भी जवाब होगा मुझे बता दीजिएगा। वो कहते हुए बाहर निकल गया। चाय का कप जूं का तू ही पड़ा रह गया, जो अब ठंडा पड़ चुका था।
दिल नशीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फजर ने बलाकर हिम्मत किए उससे बात करने की ठान ली। जी कहिए भाभी। वो किचन में पानी लेने की हद से आई थी कि पीछे से फजर ने आकर कहा। फजर ने इधर उधर देखा, वहाँ इन दोनों के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। दिल नशीन, तुम्हें पता है अजलान जी को जो मेडिसिन दी जा रही है वो इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। तुम ही मुझे कुछ मशवरा दो। फजर ने उसे सारी बात तफसील तौर पर बताई। आप ठीक कह रही हैं भाभी, मुझे भी कभी कभी ऐसा शक होता था, मगर मैं कुछ नहीं जान सकी। ऐसा कहते हैं मैं शहर शॉपिंग करने के बहाने आपके और अजलान भाई के साथ चलती हूँ। वहाँ अजलान भाई का टेस्ट करवाते हैं, फिर जो सच्चाई होगी पता चल जाएगी। इसके बाद क्या करेंगे? फजर ने तशवीश भरे अंदाज में पूछा। भाभी आगे का लाए अमल बाद में तरतीब देंगे, फिलहाल टेस्ट करवाते हैं पहले। हाँ ठीक है, उसने हामी भरी। दिल नशीन, मैं नहीं चाहती कि अजलान जी को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी करे। मैं इन्हें कुछ भी होता नहीं देख सकती। अगर इन्हें कुछ हुआ, ये सोच ही मेरी रूह तक को झंझाड़ कर रख देती है। उसकी बात पर दिल नशीन धीमे से हंस दी। लगता है हमारी क्यूट सी भाभी को हमारे भैया से प्यार व्यार हो गया है, दिल नशीन ने शरारती अंदाज में कहा। दिल नशीन वो उससे मसनूई हुस्सूली घूरी डालकर बोली। भाभी, निकाह के रिश्ते में बहुत ताकत होती है, तभी तो आप मेरे भैया से इस कदर अटैच हो गई हैं कि इनका इतना ख्याल रखती हैं। वैसे है कहाँ जनाब, नजर नहीं आ रहे। वो इधर उधर नजरें घुमाते हुए बोली। दिलनशीन, वो अपने रूम में है, कोई कार्टून देख रहे हैं। चले मैं भी इनसे मिल लूँ। आप रूम में चले, मैं जग में पानी भरकर आपके पीछे आती हूँ। दिलनशीन वो जाती हुई एक बार फिर मुड़ी। जी भाभी। दिलनशीन, मैं सोच रही थी कि वो मेडिसिन अब मैं अजलान जी को ना दूं, लेकिन ये भी सोच रही हूँ कि वो उस मेडिसिन के आदी हो चुके हैं, इसके बगैर इन्हें नींद नहीं आती। ये ना हो अगर मैं इन्हें वो मेडिसिन ना दूं तो वापस से बाहर हो जाएं और कोई नुकसान कर दें अपना। आज आपका इम्तिहान है भाभी, कोशिश करें कि अजलान भाई इस मेडिसिन के बगैर सो जाएं। अच्छा, कोशिश करके देखती हूँ। वो गहरा सांस लेते हुए अपने रूम में चली गई। फजर अंदर आई तो देखा अजलान बैठ के करीब खड़ा, हाथ में रिमोट लिए टीवी को गौर से देख रहा था। अजलान जी, ज़ियान क्या कर रहा ज़ियान क्या कर रहे हैं आप? आपको बताया है ना कि टीवी की स्क्रीन को इतने करीब से देखने पर आंखें खराब हो जाती हैं। आई सेट पर फर्क पड़ता है, चलें ज़रा दूर होकर बैठें। इसके कहने के मुताबिक अजलान बेड पर ठीक से बैठ गया, मगर नजरें टीवी स्क्रीन पर मस्कत थी। फजर ने टीवी स्क्रीन पर देखा जहाँ एक किसिंग सीन चल रहा था। आप तो कार्टून देख रहे थे, ये कौन सा चैनल लगा रखा है आपने? वो अजलान की जानिब हैरत अंगेज नजरों से देखकर बोली, जो अब इश्तिहाक से पूरी आंखें खोले टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए था। गुड़िया, मुझे भी ऐसे करना है, उसने फजर की जानिब देखकर कहा, जिस पर फजर ने हैरत से देखा। ऐसी बातें नहीं कहते अजलान जी, अभी आप बच्चे हैं और बच्चे ऐसी गंदी बातें नहीं कहते। गुड़िया, तुम मेरी बात नहीं मानोगी। अजलान जी प्लीज जिद मत किया करें, तुम करोगी या नहीं गुड़िया? देखें अजलान बात को समझा करेंगे, ये सब अच्छी बात नहीं। और आप तो गुड बॉय है ना, वो दोनों भी तो कर रहे हैं ना, वो तो गुड है, तो फिर हम क्यों नहीं? उसने हर दर्जा मासूमियत से मुंह फुलाए हुए कहा। अजलान जी, फजर ने इसकी जिद्दी अंदाज को देखकर जोर से चिल्लाई। अजलान ने हाथ मारकर गुस्से से ड्रेसिंग पे पड़ी सारी चीज़ों को ज़मीन बोझ कर दिया। दिलनशीन जो इसके कमरे में दाखिल हो रही थी, अजलान को मुश्तल अंदाज में देखकर वहीं खड़ी रह गई। क्या हुआ अजलान भैया, सब ठीक तो है? दिलनशीन उसके पास आई और तशवीश भरे अंदाज में पूछा। गुड़िया मेरी बात नहीं मान रही, मुझे भी ऐसा करना है। अजलान टीवी की जानिब इशारा करते हुए दिलनशीन को बताया। दिलनशीन ने पहले टीवी को, फिर नजरें चुराती हुई फजर को देखा। भाभी जी, पहले मरले में ही फेल मत हो जाइएगा, प्लीज मेरे भाई की फरमाइश पर गौर जरूर कीजिएगा। दिलनशीन ने उसके पास आकर शरारत भरे लहजे में कहा। दिलनशीन, अब तुम भी अजलान जी की तरह मुझे तंग करोगी? वो रोमांसी होकर रह गई। दिलनशीन मुस्कुराते हुए इन दोनों को तन्हाई फराहम करते हुए बाहर निकल गई। अजलान जी चले, अब बहुत वक्त हो गया है, अच्छे बच्चों की तरह वक्त पर सो जाएं। वो दरवाज़ा बंद किया, बिस्तर पर आकर लेट गई। मुझे नहीं सोना। वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। अजलान जी, मुझे आपको एक गुड न्यूज़ बतानी है, वो पुरजोश आवाज़ में बोली। वो इसकी बात सुनकर फिर भी अपनी जगह से टस से मसला हुआ। आए ना अजलान जी। वो मुंह टेढ़ा किए धप से बिस्तर पर आकर बैठा। आपको रोज़ाना रात को मेडिसिन लेना अच्छा नहीं लगता ना, तो आज से हम वो गंदी मेडिसिन नहीं खाएंगे। अच्छी बात है ना? वो पुरजोश अंदाज में पूछने लगी। चले आप लेट जाए। अजलान रुख मोड़ कर लेट गया, मतलब वो नाराज था और इसकी किसी
بھی بات کا جواب نہ دینا اس کی ناراضگی کو ظاہر کر رہا تھا۔ اذلان جی آج آپ نے سونے سے پہلے کی دعا بھی نہیں پڑھی۔ وہ تھوڑا سا سر اٹھا کر بولی اور اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اذلان نے بنا کچھ کہے سر کو جھٹکا دیا۔ فجر واپس اپنی جگہ لیٹ گئی۔ ان دونوں کو یوں ہی جاگتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا مگر دونوں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اذلان تو میڈیسن نہ کھانے کی وجہ سے جاگ رہا تھا مگر فجر اس کی خفگی کے خیال سے فجر نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ آف کر دیا۔ گڑیا یہ لائٹ کیوں چلی گئی؟ تمہیں پتہ ہے نا مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ رخ موڑ کر فوراً فجر کو بازو سے زور سے پکڑ کر بولا، میں آپ کے پاس ہوں۔ اس نے اذلان کو تسلی دی۔ اذلان اسے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کا چہرہ فجر کتنے قریب تھا کہ وہ اس کی سانسوں کی ہلکی سی آواز بھی سن سکتی تھی۔ اس نے دھیرے سے لمحے بھر کے لیے اذلان کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے، پھر فوراً پیچھے ہوتے ہوئے سائڈ لیمپ آن کر دیا۔ اب تو ناراض نہیں؟ اس نے اذلان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا، ساتھ ہی لائٹ چلی گئی۔ گڑیا، اذلان کو پھر سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ فجر کا شانہ تھپتھپا کر بولا، اس بار لیمپ آف نہیں ہوا بلکہ سچ مچ میں لائٹ چلی گئی تھی۔ اذلان جی میں آپ کے پاس ہوں نا، میں آپ کو آیت الکرسی سناتی ہوں، آپ کو میری آواز بھی آتی رہے گی اور پھر ڈر بھی نہیں لگے گا۔ فجر نے اسے آیت الکرسی پڑھ کر سنائی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں پھر سے خاموشی ہو گئی۔ اذلان نے ڈر کے باعث فجر کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے اور کانپتے ہوئے اسے جگڑ لیا۔ فجر اس کے ڈر کے خیال سے اسے روک نہ سکی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد اذلان اس کی نرم گرم آغوش میں سو گیا۔ فجر کو بھی پتہ نہ چلا کہ کب لائٹ آئی اور کب وہ سو گئی۔ نکاح کے بعد وہ گاؤں میں رکا نہیں تھا، سیدھا شہر آ گیا تھا۔ وہاں اس کے MBA کے لاسٹ سیمسٹر کے پیپرز تھے۔ اس نے بے دلی سے پیپرز دیے اور آج وہ آخری پیپر دے کر فارغ ہوا۔ آج وہ اپنے کمرے واپس لوٹ آیا تھا اور گھپ اندھیرا کیے کارپٹ پر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا تھا۔ اس کے سامنے مختلف قسم کے مشروبات کی بوتلیں کھلی پڑی تھیں جن سے نکلنے والی عجیب سی بو نے پورے کمرے کو اپنے حارس میں لے رکھا تھا، لیکن وہ دنیا جہاں سے بے خبر گلاس پر گلاس چڑھائے جا رہا تھا۔ اس کو کسی بات کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ سب کے سامنے تو وہ مضبوط بن کر پھرتا رہتا تھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ بھرپور نوجوان اس صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ اس نے تو ایسا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا جیسے ہو گیا تھا۔ اس کی بہن کی زندگی تباہ ہو گئی تھی، اس کے بابا سائیں اس سے بچھڑ گئے۔ سردار جعفری کی موت نے سب جہاں اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، وہیں اسے توڑ پھوڑ کے نتیجے میں ایک نئی موج جعفری نے جنم لیا تھا۔ نرم مزاج کی بجائے اکھڑ مزاج، پروقار تحمل مزاج، دھیمے لہجے کی بجائے ضدی، حسیل، خودغرض اور وحشی درندہ صفت بن گیا تھا، جس پر اپنے بابا سائیں کے قاتلوں کو اس کے انجام تک پہنچانے کا جنون سوار ہو چکا تھا۔ اسے شروع سے ہی یہ دقیانوسی رسم و رواج ناپسند تھے۔ وہ کسی بھی طرح کی لڑائی جھگڑوں سے ہمیشہ ہی دور رہتا تھا، لیکن سردار جعفری کی موت کے بعد اب وہ پہلے والا موج نہیں رہا تھا جسے خون بہا جیسی رسم و رواج سے چڑ تھی، جو خاندانی دشمنیاں اور لڑائیوں سے دور بھاگتا تھا۔ وہ کیسے اپنے بابا سائیں کے قاتلوں کے خاندان میں سے کسی ایک کے ساتھ ایک گھر میں رہ پاتا، یہ سوچ کر اس کا دماغ دن بدن معاف ہو رہا تھا۔ اس کے اندر بھڑکتی انتقام کی آگ ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، لیکن جب اپنی بیوہ ماں کا رنجیدہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتا، وہ اپنی دشمنی کو بھول جانے کا قصد کرتا، کیونکہ وہ اپنے خاندان کا واحد سہارا تھا۔ اس نے گلاس میں مشروب نہ ڈھیلا اور لبوں سے لگا لیا۔ وہ اس وقت ہوش و خردا سے بیگانہ ہوا جا رہا تھا، جس نے کبھی زندگی میں شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ اپنا غم بھلانے یا یوں کہہ لیں کہ اپنا آپ بھلا دینے کے لیے اس نے اس کا سہارا لیا تھا تاکہ کچھ دیر کے لیے وہ دنیا کے ہر غم سے آزاد ہو جائے۔ کیوں کیا تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسا؟ اس نے ٹوٹے لہجے میں شکوہ کیا اور پھر سے گلاس لبوں کو لگا لیا۔ بہت غلط کیا ہے تم سب نے میرے ساتھ۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا میں سے بھرا شیشے کا جام سامنے دیوار میں دے مارا اور ایک زوردار چھنکے کی آواز ابھری اور اس کے کانچ پورے کمرے میں جا بجا بکھر گئے تھے۔ پھر اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جگڑ لیا اور زور زور سے چلانے لگا۔ اس وقت اس کی حالت پاگلوں جیسی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا لیکن لڑکھڑا کر گر پڑا۔ میں اب تمہیں چھوڑوں گا نہیں سردار واجب، یاد رکھنا۔ وہ غصے سے گڑگڑایا۔ بہت زیادہ ڈرنک کرنے کی وجہ سے اس کا سر درد سے بھاری اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تھیں۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا
रही थी। आज वो घर लौट आया था, अपनी माँ से मिले बगैर हवेली के तन्हा गोशे में पड़ा था, जहाँ पे किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं थी। आज तन्हाई मिलती ही वो भरपूर नौजवान खुद अपने ही सामने टूटकर बिखरा, क्योंकि इसका गम बांटने वाला कोई न था। भला आखिर वो भी एक जीता जागता इंसान था, उसके अंदर भी दिल था। जैसे तकलीफ होती थी, उसने सुना था मर्द कभी रोते नहीं, लेकिन ये गलत बात बिल्कुल थी। क्योंकि मर्द भी बहुत रोते थे, इन्हें भी तकलीफ होती थी, लेकिन ये भी सच था, वो सबके सामने नहीं बल्कि तन्हाई में अपना दुख कम करते थे। जैसे अब वो अंधेरे में बैठा अपना दुख कम कर रहा था। दूर कहीं से अजान फजर की आवाज़ आ रही थी। आज उसने पहली बार में ही कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, उसकी वजह से अब उसके सर में दर्द हो रहा था। आंखें सुर्ख और पटोए भारी हो रहे थे। वो अंदाजे से अंधेरे में ही चल रहा था। चलते हुए अपने कमरे में आया और बेड पर सोए हुए वजूद पर गौर किए बिना हाथ में पकड़ा सेल फोन पर सोफे पर उछाला, जूते उतार कर दूर फेंके और दुखते सर को दबाता वार्डरोब से कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस गया और फिर शावर खोलकर इसके नीचे खड़ा हो गया। कुछ देर बाद शावर लेकर खुद को फ्रेश महसूस किया तो आकर औंधे मुंह अपने बिस्तर पर गिरा। हाथ किसी नरम सी चीज़ से टकराया तो उसकी आंखें अंधेरे में पूरी की पूरी खुल गईं। उसने गौर किया मगर कुछ समझ नहीं आया। उसने हाथ मारकर साइड टेबल पर मौजूद टेबल लैंप रोशन किया तो उसकी मधुर रोशनी सफेद नाजुक के दूधिया चेहरे पर पड़ रही थी। उसने पलक झपकाकर इस परिवश के चेहरे के नक्श का जायजा लिया। खड़ी सतून नाक, बड़ी बड़ी आंखें जिन पर मुड़ी हुई खमदार पलकें गालों पे भूसा दे रही थी, कटावदार लब और थोड़ी सी नजर होती हुई शायराक पर जा अटकी, जहाँ शायराक पर एक भूरे तिल था। उसने अपने अंगूठी के पोर से उस तिल को सहलाया। शायद अभी तक वो पूरे होश में नहीं था जो अपने कातर की बेटी की तरफ मायल हो रहा था। वो थोड़ा सा झुका और उसके भूरे तिल पर अपने लब रख गया। इसके लब अब शायराक से गालों का सफर तय कर रहे थे कि जब मुच्छों की चुभन से दुआ नींद में झुंझलाहट का शिकार हुई। अरहम, वो ख्वाब और हकीकत दोनों में भी शायद उसी का तस्वर करती थी, इसीलिए उसी का नाम पुकार बह गई। जबकि अरहम का नाम सुनकर असल होश तो मौज जाफरी को अब आया था। उसने झटके से दुआ को बिस्तर से धक्का देकर नीचे फेंका। दुआ इस आफत के लिए कतई तैयार न थी कि एकदम बिस्तर से नीचे फर्श पर गिरी और कमर बुरी तरह से दर्द होने लगी। वो हैरत ज़द नजरों से तो देखने लगी जिसने उसे यूं जमीन में धक्का दिया। सामने ही मौज जाफरी के तने नक्श वाले चेहरे को देखकर दुआ के हाथ पांव फूल गए। वो पहली नज़र में ही मौज को पहचान चुकी थी, क्योंकि इन 10 दिनों में वो इसके कमरे में लगी हुई अनाजल तस्वीर में उसे रोज़ देखती रही थी। मौज आप, वो कहते हुए उसे पुकार उठी थी, जो लहू रंग आंखें लिए उसी को देख रहा था। बिस्तर से उठकर इसके पास आया जो अब खड़ी हो चुकी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वो उसके डरे सहमे चेहरे पर नजरें गाड़ता हुआ पूछ रहा था, जबकि दुआ की कलाई इसकी हानि गिरफ्त में जगड़ी जा चुकी थी। इसका लहजा हद दर्जा साथ था कि वो कुछ बोल भी ना पा रही थी। दर्द हो रहा है, मुझे छोड़े प्लीज। वो अटक कर कहती अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर गिरफ्त, तन्हाई, सख्ती, बेबसी और दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू रवा हुए थे। मौज ने उसके आंसू देखते बेबस पड़ते उसे झटके से छोड़ा था कि वो पीछे को जा गिरी थी। बहुत दर्द हो रहा है ना तुम्हें, तो दो इस दर्द का क्या जो तुमने और तुम्हारे खानदान ने मुझे दिया है। वो चीख उठा था, जबकि दुआ अब हैरत से केंग उसे देख रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, वो अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करने लगी। वो जहर खान लहजे में खंकार भरकर बोला, तुम लोगों से अच्छी की उम्मीद भी कहाँ की जा सकती है। जितनी मर्जी नरमी दिखा लो, मगर तुम लोगों से बदले में मिलेगा सिर्फ धोखा, जैसे आज तुमने देखकर इस बात को साबित कर दिया। सांप को चाहे जितना मर्जी दूध पिला दो, वो कभी अपनी फितरत से बाज नहीं आता, कभी न कभी आपको डांस ही लेता है। इन 10 दिनों में तुम मेरे घर में, मेरे कमरे में रह रही हो मेरी बीवी की हैसियत से, मगर दिल में यादें, लबों पर नाम किसी ना महरम का। हमारे रिश्ते की पहली सीढ़ी पे इतना बड़ा धोखा, शिर्क किया है तुमने हमारे रिश्ते में। शादी मुझसे करके तुमने किसी और को दिल में बसाया भी कैसे? मेरे और तुम्हारे बीच तुम किसी तीसरे को कैसे ला सकती हो? वो उसको शानों से थाम कर झंझोड़ गया था। दुआ किसी कटी हुई पतंग की तरह उसके मजबूत बाहों में झूल गई। उठो, मौज ने दुआ का बाजू
गुस्से से पकड़ा और वो बेचारी मुश्किल से आंखें खोलकर खड़ी हुई, जो ज़हनी कश्मकश की वजह से अपने आप ही बंद हुए जा रही थी। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ, क्या कर रही थी मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पर? तुम्हारी औकात है इतनी? एक एक लफ्ज़ जपाकर बोलता हुआ दुआ के होश उड़ा गया। दुआ को जब इसके सवालात की समझ आई तो डर से कांपने लगी। माउस, मैं अभी दुआ कुछ बोलती कि माउस एक बार फिर दरस्त आवाज़ में चीखा, चुप, एकदम चुप। ये माउस क्या होता है? अपनी पसंद से ब्याह रचा कर नहीं लाया तुम्हें। भूलो मत कि बनी में आई हो तुम और एक कातिल की बेटी हो। सरदार जी कहो मुझे, और आइंदा मेरा नाम मत लेना, वरना ज़बान काट कर कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। माउस ने कहकर झटके से उसका बाजू छोड़ा और वापस मुड़ा। दुआ कमरे से बाहर निकलने लगी। किसने कहा है तुम्हें कमरे से बाहर जाने को? माउस अपने उचकाकर स्पॉट अंदाज में बोला। दुआ हैरत से दो चंद हुई। अभी तो आपने कहा है कि मैं मनपसंद लाई बीवी नहीं, इसीलिए वो न चाहते हुए भी सफाई पेश करने लगी। अच्छा, तो तुम्हें मनपसंद बीवी बनना है? वाह, तुम जैसे दोगले लोगों का क्या कहना, दिल में लबों पे नाम किसी का और रिश्ता किसी और निभाने की चाह। माउस पलट कर दोबारा आया। कभी कभी अपने मुंह से निकल जाने वाले लफ्ज़ से इंसान को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, ये पहली बार आज दुआ को पता चला था। बेध्यानी में इसके मुंह से निकले अरहम के नाम को इसके मिजाजी खुदा ने पकड़ ही लिया था और उसे ही बार बार इस्तेमाल किए लफ्ज़ के जहर भरे निश्तर उसे खूब डबो के मार रहा था। बोलो, क्या कह रही थी? माउस उसके करीब आया और वो डर से उल्टे कदम लेते हुए पीछे को होने लगी। दिल में ख्याल आया, क्या ज़रूरत थी शेर की चिंगार में हाथ डालने की, मगर क्या कहती, अब तो लफ्ज़ मुंह से फिसल चुके थे। यहाँ तक कि दुआ उल्टे कदम लेते हुए दीवार के साथ जा लगी। माउस ने दीवार के दोनों तरफ हाथ रखकर इसका रास्ता बंद किया। दुआ को लगा कि अभी वो पीछे ना हटा तो इसकी सांसें डर के मारे बंद ही हो जाएंगी। आइंदा मेरे सामने ज़बान दराजी करने से पहले 100 मरतबा सोच लेना, नहीं तो समझना मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझता। माउस ने खूनखार निगाहों से उसे देखते हुए कहा। मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, दुआ आंसू बहाते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली। तुम मेरे सामने बोल सकती भी नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी तो मैं जहन्नम बनाऊँगा। माउस ने दीवार गिर क्लॉक पर नज़र डाली, जहाँ अब सुबह के 5:30 बजे हुए थे। नीचे जाओ और नाश्ता तैयार करो सबका, मेरे लिए, मेरी वालदा और तमाम मुलाजमीन के लिए। मुझे अपने काम में 1 मिनट की भी ताख़ीर पसंद नहीं, बाकी के काम तुम्हें आकर बताता हूँ। मुझे अपने काम में 1 मिनट की भी ताख़ीर पसंद नहीं, बाकी के काम तुम्हें आकर बताता हूँ। बहुत कर ली अयाशियाँ, पहुँचो अपनी असली जगह, जो मेरे बिस्तर पर तुम तो कतई नहीं। वो आखिरी बात कहते हुए इस तरह के अंदाज में से हंसा, जबकि 2 उंगलियां मरोड़ती हुई अब तक वहीं खड़ी मखमसे का शिकार हुई थी। अब वो इसको कैसे बताती कि उसने तो कभी किचन का रुख ही नहीं किया था। हवेली में मुलाजमी सब काम करते थे या दिलनशीन ही सब करती थी। उसने हमेशा पढ़ाई पर तवज्जो दी, इन कामों के लिए तो उसे कभी फुर्सत ही नहीं मिली। जितना बड़ा दुख अहम से दूरी का था, इतना ही बड़ा दुख अपनी MBBS की पढ़ाई नामुकम्मल रह जाने पर भी था। वो दिल में सोचकर रह गई। जाओ, इसकी धार सुनकर दुआ उछल कर रह गई और धड़कते दिल के साथ तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। सारा घर सुनसान पड़ा था। जिस दिन से वो यहाँ आई थी, एक बार भी पलवशा बेगम से नहीं मिली। ना तो वो इसके कमरे में आई और ना दुआ ने उससे मिलने की कोशिश की। पलवशा बेगम तो सदमे के ज़ेरे असर अपने कमरे तक महदूद थी, जबकि दुआ तो डर के मारे जब से आई थी इसी कमरे में कैद होकर रह गई थी। बाहर जाने की हिम्मत ना थी। मुलाजमीन आते और उसे खाना वक्त पर इसी कमरे में ही दे जाते, मगर आज इस घर और कमरे का असली मालिक लौट आया था और उससे इसकी असली औकात अच्छी तरह बावर करवाया था। जिनका लग़वी मैनी छुपी हुई मखलूक, इस्लामी अकीदे के मुताबिक ऐसी नज़र न आने वाली मखलूक जिनकी तख्लीक आग से हुई है, जबकि इंसान और मलाइका मिट्टी और नूर से बनाए गए हैं। जिन्हों के मुतालिक ख्याल किया जाता है कि वो मुख्तलिफ किस्म के रूह बदलने की सलाहियत रखते हैं। कुरान व हदीस में जन्नात का जिक्र आया है। कुरान शरीफ में जन्नात के नाम पर एक पूरी सूरत जिन मौजूद है। अल्लाह ताला ने अपनी इज़्ज़त वाली किताब में जिन्नों की असल खलकत
کے متعلق بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو لو والی آگ سے پیدا کیا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح حدیث میں مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تمہیں بیان کیا گیا ہے۔ اسے مسلم اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی مختلف اقسام پیدا فرمائی ہیں جو کہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے شماس بن زماد انسانی روح میں وہاں آیا تھا۔ جس طرح انسانوں کے مختلف اقسام ہیں، کچھ نیک کچھ بد، اسی طرح جنات میں بھی کچھ برے جنات ہیں جو شیطان کے پیروکار، جبکہ کچھ نیک نوری جنات بھی ہیں جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، ان کی عبادت کرنا ہے۔ شماس بنت زماد بھی انہی میں سے ایک تھا۔ وہ ایک نیک اور رحم دل جن زیادہ تھا جس نے ماہ سنہری کے لیے دعا کی، اپنی ساری ریاست کے بدلے اس نے سنہری کو بچایا۔ صابر حسین دستک کی آواز سن کر دروازہ کھولا۔ السلام علیکم، اس نے محبت انداز میں سلام پیش کیا۔ وعلیکم السلام، صابر حسین نے جواب میں کہا، ارے یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں کل رات آپ سے بات کی تھی۔ شبانہ نے پیچھے سے آ کر بتایا۔ آؤ بیٹا اندر آؤ۔ صابر حسین اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا اور صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ سر جھکائے ہوئے بیٹھ گیا۔ بیٹا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ تم میرے کون سے دوست کے بیٹے ہو؟ چچا سائیں، میں زماد کا بیٹا ہوں، اب وہ اس دنیا میں نہیں، میں پیر سعید کی درگاہ پر کام کرتا ہوں، آپ چاہیں تو میرے بارے میں سب پتہ کروا سکتے ہیں۔ بیٹا مگر معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتا۔ وہ سانس لینے کو چند لمحوں کے لیے رکے، پھر بولے، میری جوان بیٹیوں والا گھر ہے، لوگ سو باتیں بنائیں گے، روپیہ پیسوں کی مجھے لالچ نہیں، تم بے شک میرے جاننے والے اور نیک بچے ہو، مگر میری مجبوری کو سمجھنا۔ چاچا سائیں آپ معذرت کر کے مجھے شرمندہ مت کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا ایسے، آپ بڑے ہیں بس حکم کریں، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا۔ اچھا نہیں لگتا ایسے، آپ بڑے ہیں بس حکم کریں، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا آپ کا انکار کرنا، بس بلکہ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے مجھے اپنا سمجھا اور اپنے بلا جھجک مجھے سب کہہ دیا۔ چچا سائیں میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اس نے باادب طریقے سے کہا۔ ہاں بتاؤ بیٹا، اب تمہیں اپنا بیٹا کہا ہے تو اس کا مان بھی رکھنا ہے۔ وہ اس کا شانہ تھپتھپا کر بولے، چچا سائیں میں بات گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں، اسی لیے صاف صاف بات کرتا ہوں، اصل میں میرا یہاں آنے اور رہنے کا ایک خاص مقصد تھا۔ شبانہ اور صابر حسین نے جانتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے بابا سائیں چاہتے تھے کہ میرا آپ کے خاندان سے رشتہ جڑ جائے۔ اس کی بات سن کر شبانہ اور صابر حسین نے ایک دوسرے کو سوالی نظروں سے دیکھا اور ناسمجھی سے کندھے جھکائے۔ میں آپ کی چھوٹی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے سر پہ کوئی بڑا نہیں جو یہ سب معاملات طے کرے، اسی لیے خود عرض لے کر حاضر ہوا ہوں، پیش کی معذرت اگر آپ کو برا لگا ہو۔ صابر حسین اور شبانہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ تم ہماری بیٹی حسنہ سے شادی کے خواہشمند ہو؟ صابر حسین نے پوچھا۔ حسنہ اور شاہانہ جو کمرے کے دروازے کی اوڑ میں چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی، ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کر چھیڑنے لگی اور مسکرانے لگی۔ حسنہ کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے اس وقت۔ میں آپ کی بیٹی مہا کی بات کر رہا ہوں، اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر بتایا، پھر نظریں جھکا لی۔ مگر بیٹا وہ تو ابھی پڑھ رہی ہے، صابر حسین نے کہا۔ نا جی، میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاہانہ اور حسنہ کے بارے میں بات کر رہے ہو، مگر یہ تو وہ منحوس ماری۔ اس سے پہلے کہ وہ شماس کے سامنے اپنی زبان کے جوہر دکھاتی، شبانہ، صابر حسین نے اسے اونچی آواز میں گھرکا۔ وہ منہ خود سے چہرہ چپ پھیر گئی۔ اچھا بیٹا، تم نے اپنی بات مکمل کر دی ہے، اب مجھے تھوڑا وقت دو سوچنے کے لیے، کچھ دنوں تک جواب دوں گا۔ صابر حسین نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، جی ٹھیک ہے چچا سائیں، مجھے انتظار رہے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے۔ اس نے صابر حسین سے مل کر الوداعی کلمات ادا کیے اور باہر نکل گیا۔ ماہ چھت سے کپڑے اتار کر نیچے آ رہی تھی، اس نے باہر نکلتے ہوئے شخص کی پشت دیکھی، پھر نیچے آ کر کپڑے تہہ کرنے لگی۔ یہ کیا میرے سر پر رکھ دیے کپڑے، اندر رکھ انہیں۔ وہ تنفر زدہ آواز میں ماہ کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس کا اس وقت بس نہیں چل رہا تھا کہ ماہ کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیتی۔ اگر اس وقت صابر حسین وہاں موجود نہ ہوتا، ڈائن کلموہی میری بچیوں کا حق مار رہی ہے، ابھی تو نہ شکل ہے نہ صورت، گھر بیٹھے بٹھائے اس منحوس کا رشتہ آ گیا۔ وہ دل ہی دل میں جلے دل کے پھپولے پھوڑنے لگی، کیونکہ اونچی آواز میں کہتی تو صابر حسین سے سننے کو مل جاتی تھی۔
شفق نے اپنی لالی پھیلائی اور نیا دن طلوع ہوا۔ سب اپنے اپنے معمول کے مطابق اپنے مشاغل میں مصروف تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب ناشتے میں مشغول تھے۔ اماں سائیں وہ آج شاہو شہر جا رہے ہیں اپنے کسی کام کے سلسلے میں، مجھے بھی ان کے ساتھ شہر سے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ دل نشین جو شہرام کی کرسی کے پیچھے کھڑی تھی صبرینہ بیگم سے مخاطب ہو کر بولی، مجھے تو بتایا ہی نہیں کہ تم بھی میرے ساتھ جانے والی ہو۔ دل شہرام حیرت سے پلٹ کر بولا۔ دل نشین اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں گھوری ڈال کر دیکھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، واپسی پر شاپنگ کروا دوں گا۔ وہ گلاس میں جوس کا گھونٹ بھر کر بولا۔ دراصل میں چاہ رہی تھی کہ فجر بھابھی اور اذلان بھائی کو بھی ساتھ لے جاتے، ان کی بھی ذرا آؤٹنگ ہو جاتی اسی بہانے۔ شہرام کے حلق میں سے جوس کا گھونٹ گزارنا مشکل ہو گیا۔ وہ جو اپنا اور دل نشین کا اکیلے میں یادگار سفر گزارنے کے بارے میں نئی ترکیب سوچ رہا تھا، واپس پلٹ کر دل نشین کو دیکھنے لگا۔ ان دونوں کو کوئی ضرورت نہیں ساتھ لے جانے کی، کوئی ضرورت نہیں، انہوں نے ناگواری سے کہا۔ فجر دل نشین کی طرف اترے ہوئے چہرے سے دیکھنے لگی۔ ایسا کرو تم سب گھر ہی ٹھہرو، مجھے بتا دو کیا چاہیے تم لوگوں کو، مجھے بھی شہر سے کچھ ضروری سامان خریدنا ہے، میں شہرام کے ساتھ چلی جاؤں گی، تم سب اپنے اپنے سامان کی لسٹ بنا کر مجھے دے دو۔ صبرین بیگم نے ان کا پلان ناکام بناتے ہوئے اپنا نیا پلان ترتیب دیا۔ دل نشین اور فجر ان کے انکار پر دل مسور کر رہ گئی۔ السلام علیکم اماں سائیں، سوہا نے حویلی میں داخل ہوتے ہی کہا۔ کہاں کی تیاریاں ہیں؟ وہ خوش دلی سے پوچھنے لگی۔ بس شہر جانے کی تیاری ہے، چلو اب تم بھی آ گئی ہے، ان سب کے ساتھ یہیں رکو اور کچھ چاہیے تو بتا دینا، میں لے آؤں گی۔ سائم بھی سب کو سلام کرتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ جلال الدین اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ سردار حماد اور سردار واجد زمینوں کی طرف نکل گئے۔ شہرام اور صبرینہ بیگم شہر جانے کے لیے باہر نکل گئے۔ آج شبانہ نہیں آئی؟ دل نشین نے ایک ملازمہ سے پوچھا۔ نہیں بی بی جی، ابھی تک نہیں آئی، بس آنے والی ہی ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتی ہوں۔ وہ سائم اور سوہا کے لیے دوپہر کے کھانے کا اہتمام کرنے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ ماں، او ماں، سن لے میری آواز، کہیں مر مرا تو نہیں گئی؟ وہ اونچی آواز میں بولی۔ آئی اماں سائیں، اس نے جواباً کہا اور تیز رفتار قدموں سے چلتے ہوئے شبانہ کے پاس آئی۔ کہاں مر گئی تھی؟ میری آواز سنائی دیتی ہے کہ نہیں؟ اماں، میں وہ کالج جانے کے لیے بیگ تیار کر رہی تھی، اس نے منمناتے ہوئے اپنی کارروائی بیان کی۔ آج میرا سر بڑا دکھ رہا ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی کم پٹیوں کو دباتے ہوئے بیزاری سے بولی۔ جا، آج تو حویلی چلی جا، میرے حصے کا کام نپٹا آ، ورنہ بڑی بیگم صاحبہ ناراض ہوں گی۔ اماں مگر میرا کالج، اس نے ڈرتے ہوئے اپنا مدعا رکھا۔ جاتی ہے یا لگاؤں جوتیاں دو سر پر؟ وہ تڑاک کر بولی۔ ماں بے دلی سے کمرے میں واپس آئی اور چادر نکال کر سر پر اوڑھے باہر نکلی۔ اماں میں جا رہی ہوں، وہ انہیں بتاتے ہوئے گھر سے باہر نکلی۔ کچے پکے راستوں سے گزر رہی تھی، یکدم اسے اپنے آس پاس وہی سنگلی مسور کن مہک محسوس ہوئی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس مہک کو اپنے احساسوں میں اتارا۔ کیسی ہو؟ وہی دلکش لب و لہجہ، کچھ اس کی صحت انگیز آواز کا اثر تھا اور کچھ دھوپ کی تمازت کا۔ اس کے گال دھڑک کر اناری ہوئے۔ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی؟ اس نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بس پتہ چل جاتا ہے، تم بس آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کرنا، میں فوراً وہیں آ جاؤں گا۔ آپ آئیں گے نا؟ ملکہ کہے اور غلام حاضر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سامنے سے حویلی نظر آنے لگی۔ وہ تیز قدم اٹھا کر وہاں پہنچ گئی۔ آواز بھی سنائی دینا بند ہو چکی تھی۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ ارے ماں، تم کیوں آئی؟ دل نشین نے اسے کچن میں دیکھ کر پوچھا۔ وہ دراصل اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ آپ کام بتا دیں، میں سب کر دوں گی۔ ماں، میں کھانا تیار کر لی ہوں، تم ایسا کرو، سارے برتن دھو لو اور کچن کی صفائی کر لینا، اب میں تھوڑا سا آرام کروں گی۔ جی ٹھیک ہے، ماں ادب سے بولی اور برتن دھونے لگی، جبکہ دل نشین اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ برتن دھو کر جیسی ہی پلٹی، اچانک کسی چٹان نما وجود سے ٹکرائی۔ اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے مقابلے کے کندھے پر ہاتھ جمائے وہ ڈگمگاتے ہوئے رکی، جبکہ مقابلے نے موقع دیکھ اسے اپنی باہوں میں بھرنے کی کوشش کی۔ حویلی کے نئے داماد کو وہ اپنے سامنے دیکھتی ہوئی سہمی تھی، دھڑکنیں رک گئیں۔ صاحب جی،
सहमी हुई हिरनी के मान सांसें रोक के मनमनाई। मुकाबले ने बेबाकी से इसके होठों पर उंगली रखी। महक ने तड़प कर फासले पर होना चाहा, मगर इसकी गिरफ्त इसके बाजुओं पर मजबूत थी हुई। उसने तअज्जुब से इस शख्स को देखा। चेहरे पर शदीद नागवारी नमूदार हुई, जबकि वो लंबे चौड़े वजूद का मालिक शख्स इसके सरापे को देख अपनी आंखों को सराप कर रहा था। आप छोड़े मुझे। चेहरे की नागवारी सुर्खी में ढली थी। वो इसके बाजुओं को झटक कर जाने के लिए बड़ी की थी कि लेकिन इसने जाती हुई महा की कलाई से खींचकर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। महा का दिल उछलकर हलक में आया। वो तड़प कर मुड़ी नीले समुद्र जैसी नैनों में डर हौले लेने लगा। तुम्हारी ये सुनहरी रंगत बहुत दिलकश है, आंखों से सीधा दिल पर असर करती है। उसकी गंभीर आवाज़ कानों से टकराए इसके दिल का हाल आया कर गई थी। आप मेरा हाथ छोड़ दें सरकार। कलाई को छुड़वाने में सरगदा वो अपनी सांवली सी बाजू सुर्ख करवा चुकी थी। जब्त की सुर्खी रुखसारों पर नुमाया थी। आंखों से मोतियों का सैलाब मड आया। जब से तुम्हें शादी में देखा था, एक बार इस सुनहरी रंगत के चेहरे को छू लेने की ख्वाहिश मन में आ बसी थी। इसी ख्वाहिश की तकमील के लिए ही यहाँ आया था। इसके दमकते हुए गाल को छूने के लिए अभी हाथ बढ़ाया ही था कि शर्म नहीं आती? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ हमारी शादी को और आप ये सब करने लगे। पीछे से सुहा की आवाज़ आई। उसने फौरन मुकाबले का हारिस तोड़ा। आई एम सो सॉरी सुहा, बस गलती से। साहब ने माँ से दूर होते हुए सफाई पेश करने की कोशिश की। सुहा ने हाथ उठाकर उसे रोका। क्या नजर आया तुम्हें इस काम वाली काली कलोटी मासी में? तो है तुम्हारी चॉइस पर। वो नखुसत से बोली। तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना गिरा है? वो कम उम्र सांवली रंगत वाली काम करने वाली को सर तपा तनफर ज़दा नजरों से देखते हुए धाड़ी। सोहा मेरी बात तो सुनो। साहब ने उससे पीछे से आवाज़ लगाई, मगर वो अनसुनी करती गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। चलो अच्छा हुआ कबाब में हड्डी निकल गई। वो निचला होंठ को दांतों तले दबाकर खपासत से बोला और महा की तरफ बढ़ा। उसे अपनी तरफ बढ़ते देख महा ने डर से फौरन अपनी आंखें मींच ली। तुम बस आंखें बंद करके मुझे याद करना, मैं फौरन वहीं आ जाऊंगा। उसकी वही शहर अंगेज आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। महा ने उसे याद किया। प्लीज़ दूर रहे मुझसे। वो उसे अपने बिल्कुल करीब देखकर धमकी अमेज लहंदाज में बोली। तुम मुझे मना कर रही हो? मुझे? वो इसकी कलाई खींचकर बोला। प्लीज़ मुझे जाने दे। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? इस बार वो इसके तेवर देख मिनत समाजत पर उतर आई। बसाम बगैर रुके आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ रहा था। देखे, मैं कह रही हूँ वहीं रुक रहे, वरना मैं इन्हें बुला लूंगी। महा ने पल पल अपनी तरफ बढ़ते कदमों को देखते हुए कमजोर लहजे में धमकी दी। ओ तो बुलाओ, जिस भी तुरम खान को बुलाना है बुलाओ। गबजनाक और चुपते हुए लहजे में कहता वो मुसलसल उसकी तरफ पेश कदमी कर रहा था। मैं भी देखता हूँ आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। वो इसको अपनी बाहों में भरने की कोशिश कर रहा था। आपको एक बार की बात समझ नहीं आती क्या? दूर रहे मुझसे। नहीं आती, वो मकार हंसते हुए बोला। उसके इतना कहने की देर थी कि कोई उसे घसीटता हुआ दीवार के साथ लगा गया। वहाँ कोई ऐसा था जो साइम को दिखाई नहीं दे रहा था। किसी ने उसे अनदेखी फौलादी गिरफ्त में दबोच कर दीवार से लगा दिया। वो अब गर्दन भी नहीं हिला पा रहा था। किसी ने उसे दीवार के साथ लगे इतना ऊपर उठा दिया था कि उसकी पाँव हवा में मुतल हो गए, जमीन से कई फुट ऊंचे। वो हैरत अंगेज नजरों से इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बचाओ की घटी घटी आवाज़ भी हलक से बराबर नहीं हो पा रही थी। महा जो इससे बचने के लिए तेजी से दूर होने की कोशिश कर रही थी, बुखलाहट में दूसरी तरफ भागी थी, जहां साइम का हाथ लगने से फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े पाँव में चुभने की पर कड़ा कर नीचे गिरी। शमास जिसने साइम को अपने हाथों में काबू कर रखा था, महा के दर्द से कड़ाने पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और उसके खून आलूदा पाँव को देखकर साइम को छोड़े फौरन इसकी तरफ गया। साइम अपनी गर्दन पे हाथ रखे बुरी तरह खांसने लगा। सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। तनफ्फुस बुरी तरह बिगड़ चुका था। वो वहीं गिर गया और होश और हवा से बेगाना हो गया। आए घर चले मलका। वहाँ को उसकी आवाज़ बहुत करीब से सुनाई दी।
शमास ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया। महा को ऐसा लगा कि उसने अपना हाथ किसी धमकते हुए कोयले पर रख दिया। शमास को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने फौरन अपना हाथ महा के हाथ से निकाल लिया जो उसे सहारा देकर उठाने के लिए इस्तेमाल किया था। महा लड़खड़ाते हुए आहिस्ती से चलने लगी। वो अब हवेली से बाहर निकल गए थे। चलते चलते फसलों के बीचों बीच पहुंच गए थे। बहुत शुक्रिया, महा ने धीमी आवाज में कहा। ये मेरा फर्ज था, आप सामने आए प्लीज, उसने इल्तिजाइया अंदाज में कहा। जैसा आपका हुक्म मलका, वो इसके सामने जाहिर हुआ। हर बार की तरह उसे सामने देख महा की आंखें चमकने लगी। वो था ही इतना वजिया कि उसे देखते ही आंखों में दीप जल उठते। एक बात पूछूं आपसे? वो उसे निगाहों में भरकर बोली। जी पूछे मलका, आप कौन हैं? मैं जिनज़ादा हूँ। शमास बिन जमात ने नतीजे की परवाह किए बिना उसे हर्फ ब हर्फ सच्चाई से रोनशा करवाया। माँ उसे यह कट देखती रही यहाँ तक कि शमास बिन जमात का जिस्म अपना खदोखाल बदलते हुए से लगने लगा। इसके ख्वाहिशी के मुताबिक माँ की नज़रों में ना डर था ना खौफ, बल्कि मोहब्बत हलकोरे ले रही थी। क्या आप वाकई सिर्फ मेरे हैं, मेरे लिए यहाँ आए हैं? जी मलका, मैं सदियों से आप ही का था। आप मेरे लिए और मैं आपके लिए, बल्कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। इसके जवाब पर महा बिलाख्तार इसकी तरफ बढ़ी। मलका वहीं रुक जाए, मेरे करीब मत आइएगा। शमास बिन्त जमान ने 2 कदम पीछे लेते हुए उसे खुद तक आने से रोक दिया था। आपने ही तो कहा है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो मुझे खुद के करीब आने से क्यों रोकते हैं? मैं इस बात का यकीन करना चाहती हूँ कि आप सच में हैं और सिर्फ मेरे हैं। मैं आपको अपने पूरे होश हवास में छू कर देखना चाहती हूँ। आया कि ये मेरा वहम है या हकीकत? वो हमेशा इससे बात करने के बाद यकीनी बेयकीनी की कैफियत में मुतलबा रहती और ख़ुद से उलझती रहती कि वो सब सच है या इसकी बनाई हुई अपनी ही कोई ख्याली दुनिया। आज वो इसको महसूस किए सारा सच जान लेने की मुतमन्नी थी। दिन रात ये सोच उसे पागल किए दे रही थी। शमास बिन जमान ने करब से इसका जर्द चहकता हुआ चेहरा देखा। मैं हकीकत हूँ, ये आपका दिल जानता है। मुझे छूने से आपको तकलीफ होगी। मेरा लम्स, मेरा एहसास आपका जिस्म सह नहीं पाएगा। आप समझती क्यों नहीं मलका? मैं आग हूँ और ये आग आपको जला कर भस्म कर देगी। वो बेबसी से बोला। जब हमारा करीब आना मुमकिन नहीं था तो क्यों मुझे इस खारदार रास्ते का मुसाफिर बनाया? वो अपने अंदर भरी तलखियाँ इस पर न ढाल गई। जब भी आप मेरे पास आते हैं, एक आपकी खुशबू मुझे आपके आने की खबर कर देती है। कैसे अपनी सांसों से जुदा करूँ इस महक को? मैं आग हूँ, मैं सिर्फ जलाना जानता हूँ। मेरा लम्स आपको खस्ता कर देगा। ये मुमकिन नहीं। जिद ना कीजिए मलका, उसे सारी हदूद व कदूद बुलाए अपनी तरफ बढ़ता देख वो बेखुद सा हो रहा था। मन मंदिर में निपा सोए हुए जज्बात के समुद्र में इसकी खुद से पेशकदमी पर तलामत बर्पा होने लगा। नहीं मलका, महा इसकी इल्तिजा पर रुक गई। अपनी जल्दबाजी और बेखुदी का अमल समझ में आने पर शर्मिंदगी से इसके चेहरे पर गुलाल बिखरा। जब ही बात बदलने को बोली। आपको पता है शमास, मैं बचपन से कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करती। हालांकि मैं अपने हकीकी वालिदैन से बिछड़ चुकी हूँ। न जाने वो कहाँ हो गए। सब ने हमेशा मेरे रंग को लेकर मुझे हकीर जाना, मुझे कमतर समझा, महसूस करवाया। लेकिन मैंने हमेशा अपने परवरदिगार से सदके दिल से किसी की पुरखुलूस बिना गर्ज की मोहब्बत पाने की दुआ की थी, चाहे जाने की मिन्नतें मानी थी। सारी दुनिया मुझे धुतकार दे, मगर कोई एक तो इस दुनिया में ऐसा हो जो मुझे चाहे। वो अपने दिल के नए खानों में छुपी हुई बातें उसे बताते हुए न जाने कब चलते हुए इसके करीब आ गए। खुदा ने मेरी सुन ली आपकी सूरत में। मुझे लगता है जैसे मेरी रूह आपको सदियों से जानती है। मेरा ये दिल आपके नाम पे धड़क उठता है। महा के इज़हार मोहब्बत पे शमास बिन्त जमात का दिल सरशार हुआ। वो खुद को खुशकिस्मत तस्वर करने लगा। भला मोहब्बत के लिए इससे बढ़कर खूबसूरत लम्हा और क्या होगा जब महबूब उसके अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हो। मलका, बेशक आपने इन 18 सालों से अपनी मोहब्बत की तमन्ना की होगी, मगर वो एक पल के लिए खामोश हुआ। महा ने उसकी सुरमई आंखों में देखा जहां भस्म कर देने वाले शोले भड़क रहे थे। इसकी लाल अंगारा आंखों में जुनून था। लेकिन आप मेरी कई सदियों की रियाजत हैं। दिन रात खुदा से आपका साथ मांगा है। महा ने शमास बिन जवाद के जवाब पर बेखुद होते हुए उसके शाने पर सर रख दिया। तमाम आदमजाद हम जिन ज़ातों का नाम सुनकर ही खौफ खाते हैं, ये अजब है जो हमसे डरती है।
بلکہ ہماری قربت کی طلبار بن بیٹھی ہیں۔ اس نے سوچا، شماس سنے نا۔ شماس نے گردن ترچھی کی، اس پر نگاہیں جمائی جو اس کے بے حد قریب اس کے شانے سے لگی ہوئی تھی۔ جی سنائے ملکہ، میں جلنا چاہتی ہوں۔ مہا نے اس کے سرخ ہوئے انگارے جیسے گالوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مہا کی خواہش سن کر شماس کا جسم آگ کی طرح تپنے لگا۔ دونوں کے دلوں میں لگی آگ کسی طور نہ بجھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لگتا تھا اب یہ آگ دونوں میں سے کسی ایک کو جلائے بغیر کسی صورت ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ شماس نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے نرمی سے اپنے حارس میں لے لیا تھا۔ دونوں جیسے کسی پرسکون لمستی لمحے کے زیر اثر تھے۔ شماس کی گرفت میں جاتی ہی جیسے اسے ہوش آیا، ایک اجنبی نامحرم مرد کی قربت، نہیں یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو سارے گوٹ میں بدنامی ہوگی۔ اس نے دور ہونے کی کوشش کی، لیکن یہ کیا، اس کا جسم تو جیسے مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ایک انچ اپنی جگہ سے نہ ہل سکی، جبکہ شماس بنت زماد بس چپ چپ اسے خود میں سموئے کھڑا تھا۔ بہت جلد ہم محرم میں بدل جائیں گے، پھر یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، آپ بنے گی ہماری محرم۔ شماس بن زماد نے اس کے کانوں میں جیسے سیر پھونکا۔